अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कैंसर और फालिज से मुतासरीन को पहली एक्टिव केयर यूनिट की खिदमत से फ़ायदा उठाना चाहिए। रिम्स हॉस्पिटल में मुतासरीन को बेहतरीन तिब्बी खिदमत फराहम की जा रही है। आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ का बयान। हुजूर अक़दस की शान में गुस्ताखी के खिलाफ गुड़ी हथनूर मंडल मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम मंडल मुस्तखर में कामयाब और पुरअमन बंद। कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की कोशिशों से मुख्तलिफ कामों के लिए फंड्स की मंजूरी से हल्के में खुशी का माहौल। इस सिलसिले में साबिक वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी से खुसूसी बातचीत। श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। और अब खबरें तफसील से। आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ ने कहा कि ज़िले के कैंसर और फालिज से मुतासरीन को पहली एक्टिव केयर यूनिट की खिदमत से फ़ायदा उठाना चाहिए। रिम्स हॉस्पिटल में मुतासरीन को बेहतरीन तिब्बी खिदमत फराहम की जा रही है। इन्होंने हफ्ते के रोज़ शहर मुस्तखर में वाक़ रिम्स हॉस्पिटल में मुनक़िद एक प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन्होंने हैस्पिस और पहली एक्टिव केयर डे की तक़रीबात के हिस्से के तौर पर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीज़ों को मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। इन्होंने इन तिब्बी खिदमात के बारे में दरियाफ़्त किया जो वो हासिल कर रहे थे और सेहत से मुताल्लिक़ एहतियाती तदाबीर तजवीज़ की। डॉक्टर जय सिंह राठौड़ ने कहा कि कैंसर के मुतासरीन को दूर दराज इलाक़ों में भी इलाज के ज़रिए तिब्बी खिदमत फराहम की जा रही है। इन्होंने कैंसर से मुताल्लिक़ अलामात ज़ाहिर होते ही डॉक्टर से रुजू करने का और इलाज करवाने का मशवरा दिया। హాస్పిటల్ దేవుల్లో ఈ వారం మొత్తం జరుపుకోవచ్చు. 9 రోజుల్లో నిన్న పాలెట్ సెంటర్లో జరుపుకుంటున్నాం. 2018లో స్టార్ట్ చేశాము. చాలా ఎఫెక్టివ్గా నడుస్తుంది. ఏమో చెప్పినట్టు డాక్టర్లు ఉన్నారు, స్టాఫ్ ఉన్నారు. మా సూపర్వైజర్లో ఏ ప్రాబ్లం ఇమీడియట్గా మా అనస్థిస్ట్ కావచ్చు, సర్జన్. సో వాళ్ళు ఎవరైతే క్యాన్సర్ బారిన పడతారో వాళ్ళు వివిధ ప్లేస్లో పోయి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు. ఏమో చెప్పినట్టు టర్మినల్ స్టేజ్లో వాళ్ళకు ఎక్కడ సర్వీస్ అందకపోవచ్చు, అందచ్చు. సో అందుకోసం గవర్నమెంట్ ఆలోచించి పాలిటిక్ కేర్ పెట్టారు. మేము కూడా డైలీ సూపర్వైజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అన్ని రకాల సర్వీస్ అందుతున్నాయి. డిఎంహెచ్ గారు స్టార్టెస్ కూడా చెప్పారు, మోర్ దెన్ 600. ప్లస్ రిమ్స్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ శ్రీకాంత్ క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారు. అప్పుడప్పుడు మేము కూడా ఆయనను ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తూ ఉంటాం, ఏమైనా అవసరం ఉంటే క్వాలిటీ కూడా ట్రీట్ చేయండి. సో ఈ యొక్క అవకాశాన్ని జిల్లా ప్రజలు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. ఈరోజు పీవీఎల్సీ కార్యక్రమం కింద వరల్డ్ హాస్పైస్ డే ప్యాలియేటివ్ కేంద్రంలో రిమ్స్ డైరెక్టర్ గారి యొక్క అధ్యక్షతలో మనం ఇక్కడ ఈ డే జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఇది ప్యాలియేటివ్ కేర్లో ఎవరెవరికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తామంటే మనం టెర్మినల్గా ఎవరైతే ఎండ్ స్టేజ్లో ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. క్యాన్సరే కాకుండా మిగతా వ్యాధుల వల్ల కూడా వచ్చేటువంటి బెడ్ రిడన్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఎండ్ స్టేజ్లో ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేదానికోసం ఇది ఎంతో ఉపయుక్తకరంగా ఉంటుంది మన రాష్ట్రంలో. మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 2018లో మనకి ఇక్కడ మొదలు పెట్టడం జరిగింది. దాదాపు ఇక్కడ ఈ హాస్పైస్ డే అంటే ఎస్పెషల్లీ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో చనిపోయేదానికి వీళ్ళకి సంబంధించి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేదాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇక్కడ దాదాపు 620 మందికి మనము నోటిఫై చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ज़िला आदिलाबाद के गुड़ी हथनूर मंडल मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम हफ्ते के रोज़ गुस्ताख़ रसूल मलून यती नरसिंहानंद की जानिब से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ कामयाब और पुरअमन बंद मनाया गया। गुड़ी हथनूर मंडल मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की बंद की अपील पर गुड़ी हथनूर मंडल मुस्तखर के आशिक़ान रसूल और मुसलमानों ने
صبح کی اولین ساعتوں سے ہی اپنے اپنے کاروبار کو مکمل طور پر بند رکھ کر پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کے خلاف سخت احتجاج درج کروایا۔ واضح رہے کہ بند کے ضمن میں کسی قسم کا عوام پر دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ فرزندان توحید نے رضاکارانہ طور پر پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کے خلاف بند میں حصہ لیا، جو پرامن اور کامیاب رہا۔ بعد نماز ظہر عاشقان رسول نے جامع مسجد گڑی ہتنور سے بس اسٹینڈ تک ایک خاموش ریلی منظم کرتے ہوئے ٹرینی سب انسپکٹر گڑی ہتنور کو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کڑی سے کڑی کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت پیش کی۔ اس موقع پر امام و خطیب جامع مسجد گڑی ہتنور مولانا عارف نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے سوامی نرسنگانند کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سخت سے سخت سزا دینے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ مولانا عارف نے کہا کہ بند بنانے کا اہم مقصد گڑی ہتنور منڈل مستقر سے حکومت ہند تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جو لوگ شان رسالت میں گستاخی کر رہے ہیں ان کو اور خاص طور پر ملعون یتی نرسنگانند کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی شان رسالت میں گستاخی کی جرات نہ کر سکے۔ آج 19 تاریخ بروز ہفتہ اس گستاخ کی وجہ سے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں اور ہر سمجھدار انسانوں کو دل کو زخمی کیا، اسی کے سلسلے میں گڑی ہتنور منڈل کو پورا بند کیا گیا اور ظہر کی نماز کے بعد سے جامع مسجد سے لے کر کے بس اسٹینڈ تک خاموش ریلی نکالی گئی اور ایک میمورنڈم پیش کیا گیا جس میں تمام مساجد کے صدر اور راجی کے ذمہ داری موجود تھے اور ہماری اس ویڈیو کے ذریعے سے اس ریلی کے ذریعے درخواست کی جا رہی ہے اس طریقے کے جہاں پر بھی کسی بھی مذہب کے پیشواؤں کے بارے میں کوئی گستاخی کرے تو فوری طور پر اسے اریسٹ کیا جاوے اور کڑی سے کڑی اسے سزا دی جاوے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ کانگریس پارٹی کے حلقہ انچارج کندی سرینواس ریڈی کی کوششوں سے ریاستی حکومت کی جانب سے CRR گرانٹ کے تحت 10 کروڑ روپے اور مختلف کاموں کے لیے SDF فنڈ سے 4 کروڑ عدل آباد حلقے کو منظور کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں کانگریس پارٹی قائدین میں جشن کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ کندی سرینواس ریڈی کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور انچارج منسٹر سیتکا سے اظہار تشکر کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ANN چینل کے نمائندے خضر احمد یافعی نے عادل آباد میونسپل سابق وائس چیئرمین ظہیر رمضانی سے مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کی ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حلقہ اسمبلی عادل آباد کانگریس پارٹی انچارج کندی سرینواس ریڈی کم وقت کے اندر انہوں نے عادل آباد کے اندر اپنی ایک شناخت اور پہچان بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے اور حالیہ اسمبلی انتخابات میں ہارنے کے باوجود کندی سرینواس ریڈی عوام کے درمیان میں ہے اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے یکسوئی کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، وزیر انچارج سیتکا سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور عادل آباد کی ترقی کے لیے فنڈز کی منظوری کے اندر بھی اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ حالیہ 2 روز قبل ریاستی حکومت کی جانب سے عادل آباد، بیلا، حلقہ اسمبلی عادل آباد کے لیے مختلف مذہبی مقامات کے لیے 4 کروڑ روپے کی اسپیشل فنڈ سے منظوری عمل میں لائی گئی ہے، جس میں مساجد اور مندر کی ترقی کے لیے اس میں فنڈز کو مختص کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ میں سابق میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی ہے، ان سے مزید ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا امن نیوز چینل میں خیر مقدم ہے۔ بتائیے کہ جیسے کندی سرینواس ریڈی نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں ہارنے کے باوجود وہ عوام کے درمیان میں ہے اور عوام کے مسائل کی یکسوئی کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں اور آپ بھی بحیثیت میونسپل سابق وائس چیئرمین اور کونسلر اور کانگریس لیڈر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور عادل آباد کی ترقی کے لیے آپ بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں 4 بار جیتنے کے بعد بھی آج 25 سال ہو گئے عادل آباد کی سیاست کے اندر، لیکن کندی سرینواس ریڈی صاحب کے طرح کا لیڈر میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ کچھ ہی یعنی کہ 1 سال کے اوپر ہوا آنے کے بعد عوام نے جو مقبولیت حاصل کی ہے انہوں نے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ کئی لوگ
कई लीडरों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई लेकिन इस मुकाम तक नहीं पहुंच सके। इसकी वजह क्या है बोले तो वो लीडर में जस्तजू है, तो लीडर का एक ख्वाब है कि मैं आदिलाबाद के लिए कुछ करूं। वो जो जस्तजू के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, असेंबली इलेक्शन के टाइम पर जो उन्होंने जो 47,000 जो वोट लिए, ये छोटी बात नहीं है। बिना कोई कैडर के, बिना कोई लीडर्स के उन्होंने इतने वोट लिए, तो ये इनकी ज़ाती पहचान से उन्होंने जो काम किया है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आज आप बलूचिस्तान में जो काम इलेक्शन होने के बाद भी, हारने के बाद भी उन्होंने पब्लिक में रहकर पब्लिक का काम कर रहे हैं। इसी ताल्लुक़ से आप देखिए, अभी 14 करोड़ रुपए का काम आदिलाबाद में, अभी 10 करोड़ रुपए एक सैंक्शन 2-3 दिन पहले आया, और 4 करोड़ रुपए SDF का जो फंड है ऑलरेडी 1 महीना पहले उन्होंने प्रपोजल्स भिजाया था। जो एक हिंदुस्तान की तारीख का जो राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू की थी, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान का जो नारा लगाया था उन्होंने, वो नारे को बाखूबी कंदी सिन्हा सेठी साहब निभा रहे हैं और लेके चल रहे हैं। आज जो 4 करोड़ के SDF का जो फंड्स उन्होंने डिवाइड किया है, पूरे ऑल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबका ख्याल रखते हुए लोगों के जो भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ कहीं भी जो चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर वो लगाया गया है। और आने वाले टाइम में, अभी शुरुआत है तो यह हाल है, अभी आगे कंदी सिन्हा रेड्डी साहब और रेवंत रेड्डी साहब तेलंगाना के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। और कंदी सिन्हा रेड्डी साहब एक ऐसा डायनामिक लीडर है जो पैसों की आस नहीं है उनको, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। इसलिए हम आगे जो सो बहुत काम करने वाले हैं, उनके साथ मिलकर एक बहुत बड़ी टीम है ये, उनके साथ मिलकर हम आदिलाबाद का जो डेवलपमेंट है और जो भी हमारे अपने लोगों के काम हैं, वो काम को बाखूबी लेकर चलेंगे। और उसके लिए भी हम रेवंत रेड्डी साहब और सीतक्का का भी शुक्रिया अदा करते हैं आदिलाबाद के आवाम की तरफ से, और कंदी सिन्हा रेड्डी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो काम उन्होंने आदिलाबाद के लिए लाया है और आगे भी लाएंगे। इसके लिए हम सब मिलकर ये आदिलाबाद को डेवलपमेंट करना है, और कौन से भी अगर मसाइल है तो वो काम सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट करने वाली है। इसलिए आवाम से गुजारिश है कि आप अपने काम जो भी है कांग्रेस पार्टी के लीडर्स तक पहुंचाइए, और वही काम करने वाले हैं, दूसरे कोई काम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कांग्रेस की है। तो आप खुद भी जानते हैं कि काम सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट ही कर सकती है। जैसा कि मस्जिद और मंदिरों के लिए फंड्स लाया गया, किसी के लिए 5 लाख और 3 लाख 2 लाख, तो ये कामों का आगाज़ कब होगा और कंदी सिन्हा रेड्डी के हाथों से किया जाएगा, कब होगा इस सिलसिले में? अभी कंदी सिन्हा रेड्डी साहब आदिलाबाद आने के बाद ये जो SDF के जो प्रोसीडिंग्स है मस्जिद के, मंदिरों के, ये साहब आने के बाद वो प्रोसीडिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। करने के बाद उसके पीछे हमारी टीम उसके एस्टीमेट बनाकर वो काम को बिल्कुल जल्द से जल्द हम चालू करेंगे। जैसे कि बाज़ अपोजिशन लीडर भी ये कह रहे हैं कि ये हमने क्या है वज़ीर आला से नुमाइंदगी की थी, और वो लोग अपने अपने सोशल मीडिया पे और दिगर ज़राए से वो लोग ये कह रहे हैं पोस्ट डालकर कि इसकी नुमाइंदगी हमने की थी और ये फ़ंड्स को हमने मंजूर कराया। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये आप हर हमेशा देखिए, ये जो छिंदी लीडर जो रहते, ये छिंदी लीडर क्या करते, वो तो ऐसे ही दूसरे का चोरी करके, दूसरे का फ़ोटोज़ ले लेके ये हमने करा, इनकी कोई औकात नहीं है कराने की। फंड्स लाना बहुत बड़ी बात है। वक्त के MLAs कहीं चले गए, 10 लाख रुपए नहीं मिले वैसे MLAs को, तो ये छिंदी लीडर जाके नुमाइंदगी करे तो इनको फंड्स मिलने वाला है। यह काम सीतक्का और रेवंत रेड्डी साहब के पास कंदी सिन्हा रेड्डी साहब ही जाकर लाए सो है, और सिर्फ कंदी सिन्हा रेड्डी साहब ही ये कर सकते हैं और उन्होंने ही किया है। जैसा कि फ़ंड्स मंजूर होने के बाद में गुज़िश्ता कल मुख्तलिफ़ मकामात में आदिलाबाद में भी और देहातों के अंदर भी लोग कंदी सिन्हा रेड्डी और रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहला रहे हैं, तो अवाम का रद्द-ए-अमल क्या सामने आ रहा है? और बहुत से लोग आने वाला जो काउंसिल इलेक्शन है उसमें हैड्रा को लेकर क्या है कांग्रेस के ख़िलाफ़ मुहिम चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इन चीज़ों में आपका क्या कहना है?
आज HYDRA का जो मीनिंग है, ये जो बोल रहे थे जो लीडर हैं, अपोजिशन लीडरों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि बेटा तुम पढ़े लिखे अगर रहते हैं तो हैदरा के बारे में मालूम करते थे कि हैदरा का जो मीनिंग है वो सिर्फ हैदराबाद के ताल्लुक से ही वो जियो और वो रेजुलेशन और वो क़ानून बनाया गया है। उसके अलावा हैदराबाद से हटके तेलंगाना पर कहीं पर भी नहीं है। और किसी को ये फालतू जो घरों में बैठ के जो लीडरी करते हैं सोशल मीडिया पे, इनकी बातों में नको आओ। आप जो ग्राउंड में काम करने वाले जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स है, आप उनको पूछिए, उन्होंने आपको सही बताएंगे कि हैदरा आता नहीं आता, क्या होता, कुछ होने वाला नहीं है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब और सीतक का एक बात बोलिए, किसी का भी एक घर भी जो है तो हम जो है तो जाने नहीं देंगे, किसी को भी नुकसान होने नहीं देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, जो इजहार ख़याल कर रहे थे और बता रहे थे कि गुज़िश्ता ही कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से मुख्तलिफ़ तरक्याती कामों के लिए 10 करोड़ और इसी तरह मजहबी मकामात के लिए 4 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई। और उनका कहना था कि बहुत जल्द कामों का आगाज़ भी किया जाएगा। और इन्होंने हैदरा के ऊपर भी अपना इजहार ख़याल किया और कहा कि ये सिर्फ हैदराबाद तक है, अजला के लिए ये चीज़ नहीं है। अवाम को अपोजिशन के बहकावे में ना आने की इन्होंने अपील की है। कैमरा पर्सन महेंद्र रेड्डी के साथ मैं खजर याफ़ी, अमा न्यूज़ चैनल, आदिलाबाद। मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा खानक़ाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती आदिलाबाद के ज़िम्मेदारान की इत्तला के मुताबिक बतारीख़ 20 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा खानक़ाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती आदिलाबाद में मजलिस बज़िमन उर्स मुबारक हज़रत सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया मुनक़िद होगी। बाद नमाज मगरिब कुरान ख़वानी फ़ातिहा होगी। बाद नात व मनक़बत फ़ैज़ान औलिया पर बसीरत अफरोज़ ख़िताब होगा। दुआ दुरूद व सलाम पर मजलिस का इख्तिताम होगा। बाद नमाज इशा लंगर का नज़्म रहेगा। मस्तूरात के लिए पर्दे का नज़्म रहेगा। सभी से मैं मस्तूरात व दोस्त अहबाब इस पुरनूर महफ़िल में शिरकत की गुजारिश की जाती है। शहरियान आदिलाबाद के लिए ये बात बाइस मसरत है कि खानक़ाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती में बरोज़ इतवार 20 अक्टूबर को बाद मगरिब के मजलिस फ़ैज़ान औलिया बनिस्बत महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की निस्बत की मजलिस मुनक़िद होगी। और बाद नमाज मगरिब के कुरान ख़वानी और फ़ातिहा होगी। बाद नातों और मनक़बतों के बसीरत अफरोज़ बयान होगा और दुरूद व सलाम पर इस मजलिस का इख्तिताम होगा। बाद इशा के लंगर का नज़्म रहेगा। सभी से मैं मस्तूरात और दोस्त अहबाब इस पुरनूर महफ़िल में शिरकत की गुजारिश है। मस्तूरात के लिए पर्दे का नज़्म रहेगा। औलिया दरअसल हक़ और सदाक़त के अमीन होते हैं, इन्हीं के ज़रिए से हक़ मिलता है। तो ये जो महफ़िलें खानक़ाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती मुनक़िद की जाती हैं, इसे हक़ के हुसूल के लिए की जाती है। तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा इन मजालिस में शिरकत फरमा कर मुस्तफ़ीद हों। आदिलाबाद म्यूनसिपल साबिक़ वाइस चेयरमैन व कांग्रेस पार्टी क़ायद ज़हीर रमज़ानी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी काउंसलरों के एक वफ़द ने हफ्ते के रोज़ ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह से गुलदस्ता पेश करते हुए खैर सगाली मुलाक़ात की और शाल पोशी करते हुए तैनियत पेश की और दशहरे की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर काउंसलर्स ने अपने अपने मुतल्लिक़ा वार्ड्स के पीने के पानी, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह के मसाइल पर ज़िला कलेक्टर से तबादला ख़याल किया।
ज़िला कलेक्टर ने मसाइल के हल के लिए मुस्बित जवाब दिया। का आइडिया है ना उसी को बोला। आपके परिचय और आप तमाम खुशियाँ दे ऊपर वाला। उसके बाद से हमारा रोज लेकिन नहीं रहा बोलने के बाद ठीक है हम दोनों मिलकर कॉपरेट कर लेंगे ताकि ये आगे हम पूरे बात करें आओ किससे बात किया कल त्रिपाठी साहब बहुत एससी साहब वेंकटेश बाबू कंपल्सरी 2 फीलिंग देते थे ऐसे वो बहुत अच्छे वर्क करके एक ही मेरा टाइम ऑन आपके परिचय और आप तमाम खुशियाँ दे ऊपर वाला। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की कोशिशों और ज़िला इंचार्ज वजीर सीतक्का के ताउन से बेला मंडल को एक वक्त में 14 लाख SDF फंड देने के इक़दाम पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। इसी के साथ बेला मंडल मुस्तखर में अवाम और पार्टी की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, इंचार्ज वजीर सीतक्का और इंचार्ज आदिलाबाद कंदी श्रीनिवास रेड्डी का शुक्रिया भी अदा करते हुए जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी की कोशिशों को सराहते हुए इनकी फ्लेक्सी को दूध से नहलाया गया। बेला मंडल ब्लॉक कांग्रेस सदर संजय गुंडावार ने कहा कि फ़ंड्स जारी होने से कम्युनिटी शेड और मंदिरों की तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। आदिवासी वेलफेयर परिषद के नायब सदर नित्यम सीताराम ने कहा कि माजी की हुकूमत ने प्रधान ज़ातों को नज़रअंदाज किया था और प्रधान बरादरी की जानिब से हम कंदी श्रीनिवास रेड्डी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం సీతక్క గారి నాయకత్వం సీతక్క గారి నాయకత్వం కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం కంది శ్రీనివాస్ మండల్ హెడ్ క్వార్టర్ లో బాజీరావు బాబా టెంపుల్ దగ్గర టీన్ షేడ్ కోసం వాళ్ళ కమిటీ ద్వారా మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి అట్లానే మన ముద్దు బిడ్డ మంత్రివర్యులు సీతక్క గారికి అట్లానే మన అన్నదాత సీనన్న గారికి అందరూ పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే బేలా మండల్లో ఈ బేలా హెడ్ క్వార్టర్లో ఇదివరకు దాకా ఎటువంటి నిధులు లేక ఈసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి బాజీరావు బాబాకు 3 లక్షల నిధితో అట్లానే జామా మస్జిద్కు 5 లక్షల నిధితోనే ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ ఇచ్చడం జరిగింది. అట్లానే ఎస్సీ వర్గీయులకు 3 లక్షలతోనే టీన్ షేడ్ ఇచ్చడం జరిగింది. అట్లానే మన హీరాసక్క వాళ్ళు ఎస్టీ వాళ్ళకు 2 లక్షలు టీన్ షేడ్, అట్లానే మన భీమన్న ఎస్టీ వాళ్ళకు ₹1,00,000 అట్లా 14 లక్షలు నిధి మనకు కేటాయించడం బేలాలో కేటాయించడం ప్రాపర్ బేలాలో కేటాయించడం జరిగింది. బేలా మండల్ ప్రధాన్ సమాజ్ కమిటీలో మా దైవగురు హీరాసుక్క కొరకు మేము ఇంతకు ముందు ఉన్న ప్రభుత్వానికి అధికారులకు అందరికీ మేము విన్నవించినా కూడా ఎవరు ఇప్పటిదాకా పట్టించుకోలేదు, ఎవరు సాయం చేయలేదు మా హీరాసుక్క గురించి. ఇప్పుడు మా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ మా రేవంత్ రెడ్డి అన్న ఆధ్వర్యంలో, మా సీతక్క ఆధ్వర్యంలో, మా కంది శ్రీనివాస్ అన్న మాకు మాట ఇచ్చి నిలబెట్టుకున్నారు. आदिलाबाद ज़िले के इचोड़ा मंडल मुस्तखर में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया।
इचोड़ा मंडल मुस्तखर के रमज़ानपुरा कॉलोनी चौक में ज़फ़रुद्दीन नामी एक शख्स की किराना व बेकरी शॉप में हफ्ते के रोज़ सुबह की अवलीन सातों में बरक़ी शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान में रखा सामान जलकर खाकतर हो गया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर आग लगने की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी, जिन्होंने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक दुकान का सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गया। मालिक दुकान ज़फ़रुद्दीन ने बताया कि तकरीबन 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ। गिरदावर हुसैन ने जाए वाक़े पर पहुंचकर पंचनामा किया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही कांग्रेस पार्टी बौद्ध असम्बली इंचार्ज अड़े गजेंद्र ने जाए वाक़े का दौरा करते हुए मायना किया और मुतासरीन से मुलाकात करते हुए तसल्ली दी। इन्होंने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। इन्हें यकीन दिलाया कि वो हुकाम से बात करते हुए मुआवजा हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। इस मौके पर इनके साथ इचोड़ा और बौद्ध मंडलों के कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। आदिलाबाद हल्के की तरक्की के लिए फ़ंड्स की मंजूरी पर खुशी का इजहार करते हुए मुख्तलिफ ज़िले भर में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। कांग्रेस आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी, जिन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की, इनकी खिदमत की सताइश कर रहे हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर आदिलाबाद देही मंडल के वानवाट और पिपलधारी गांव में पार्टी के रहनुमाओं और गांव वालों ने इनकी फ्लेक्सी को दूध से न लाया और तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स के इजरा पर खुशी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी की पहल और ज़िला इंचार्ज वज़ीर सीतक्का के ताउन से फ़ंड्स जारी करने पर वो बहुत खुश हैं। రైట్ ఓకే పటేల్ రైట్ ఓకే పటేల్ ఆదిలాబాద్ మండలంలోని వానవాట గ్రామంలో ఎస్డిఎఫ్ నిధుల కింద ఒక 3 లక్షలు గ్రాంట్ శాంక్షన్ చేయబడినది. అది రెడ్డి గారి ద్వారా మరియు సీతక్క ద్వారా మన కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఎంతో కృషి చేసి ఒక 4 కోట్ల వరకు ఎస్డిఎఫ్ నిధులు తేవడం జరిగింది. అలాగే ఒక 10 కోట్ల వరకు డెవలప్మెంట్ గ్రాంట్ కింద తీసుకురావడం జరిగింది. అందులో నుండే 3 లక్షలు వానవాట గ్రామానికి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కేటాయించడానికి కృషి చేసిన కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో కూడా అన్ని విలేజ్లలో కూడా ఇందిరామెన్లు కానీ కరెంట్ కానీ అడవి హక్కు పట్టాలు కానీ గతం నుంచి అభివృద్ధి చేసిన రైతులు కానీ ప్రజలు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అదే మాదిరిగా మధ్యాహ్నం కొంత దూడదుక్తి సక్తులు చేయబట్టి కొన్ని పార్టీ మాత్రం ఓడిపోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చింది. ఇప్పుడు అభివృద్ధి విషయంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది ఫిఫాదరీలో కూడా 3 లక్షలు బాజిరావు బాబా 3 లక్షలు పెట్టడం జరిగింది. అదే మాదిరిగా ఆదిలాబాద్ మండల్ కానీ మన నియోజకవర్గం కానీ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మొత్తం దృష్టిపై అన్ని పల్లెల దృష్టిపై వేసి అభివృద్ధి పైన ఖచ్చితంగా మళ్ళా కష్టాల సుఖాలకు కానీ
కార్యకర్తలు కానీ ఎవరు కానీ అభివృద్ధి పైన ఉంటారనుకొని కూడా మేము మనవి చేస్తున్నాం. ఎందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మా వానవాడ్ గ్రామానికి వివిధ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాన్స్టిట్యున్సీలో వివిధ గ్రామాలకు వచ్చినటువంటి గ్రాండు సందర్భంగా వారికి మా కృతజ్ఞతలు మరియు శుభాభినందనలు. సీనియర్ నాయకులు అదేవిధంగా మా గ్రామ ప్రజలందరం కలిసి ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి, సీతక్క మరియు అదేవిధంగా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరం కలిసి వారికి పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది వానవాడ్ గ్రామ ప్రజల ఆధ్వర్యంలో. आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ ने हॉस्पिटल मुतल्लिक़ा शोबेजात का दौरा किया। मामूल के दौरे के एक हिस्से के तौर पर वो मुख्तलिफ़ शोबों में गए और मरीज़ों से फ़राहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में दरियाफ़्त किया। कई मरीज़ों से बात की और इनकी सेहत के बारे में दरियाफ़्त किया। मेडिकल ऑफिसरान और अमले को बहुत सी हिदायत दी गई। इन्होंने मरीज़ों से एहतराम से बात करने और इन्हें बेहतर तिब्बी खिदमात फ़राहम करने अमले को मशवरा दिया। గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు రిమ్స్ హాస్పిటల్లో రొటీన్గా ప్రతిరోజు మార్నింగ్ 9 to 1 రౌండ్ చేస్తూ ఉంటాం. అదేవిధంగా ఈరోజు పీడియాట్రిక్ కూడా రౌండ్ చేశాను. ట్రీట్మెంట్ బాగానే ఉంటుంది అందరికీ. ప్లస్ మనం కంపేర్ టు లాస్ట్ జూలై ఆగస్ట్లో అయితే ఫీవర్ సీజన్ ఎక్కువ ఉండే, ఇప్పుడు చాలా తగ్గిపోయింది. ఐ పీరియడ్ కూడా తగ్గింది, ఓట్ కూడా తగ్గింది. షుగర్ నుంచి చాలా తగ్గితే రకరకాల ట్రీట్మెంట్ మొన్న పాత ఉన్న కేసు ఇప్పుడు రావట్లేదు, జనరల్ కేసెస్ ఉన్నాయి కనుక ఈ ఎమర్జెన్సీలో కూడా వాళ్ళు వచ్చి అడ్మిట్ వాళ్ళని కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు రిమ్స్ హాస్పిటల్లో రొటీన్గా ప్రతిరోజు మార్నింగ్ 9 to 1 రౌండ్ చేస్తూ ఉంటాం. అదేవిధంగా ఈరోజు పీడియాట్రిక్ కూడా రౌండ్ చేశాను. ట్రీట్మెంట్ బాగానే ఉంటుంది అందరికీ. ప్లస్ మనం కంపేర్ టు లాస్ట్ జూలై ఆగస్ట్లో అయితే ఫీవర్ సీజన్ ఎక్కువ ఉండే, ఇప్పుడు చాలా తగ్గిపోయింది. ఐ పీరియడ్ కూడా తగ్గింది, ఓట్ కూడా తగ్గింది. షుగర్ నుంచి చాలా తగ్గితే రకరకాల ట్రీట్మెంట్ మొన్న పాత ఉన్న కేసు ఇప్పుడు రావట్లేదు, జనరల్ కేసెస్ ఉన్నాయి కనుక ఈ ఎమర్జెన్సీలో కూడా వాళ్ళు వచ్చి అడ్మిట్ వాళ్ళని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే సార్. किसानों ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि कांग्रेस हुकूमत ने इन 490 किसानों के खाते में बराह रास्त 86 लाख रुपए जारी किए, जिनकी फसलें बेला मंडल के पेनगंगा नदी किंचमपेंट गांव में गुज़िश्ता माह के सैलाब की वजह से ज़ाय हुई थी। खुदगूर गांव के किसानों ने कांग्रेस के अहम कायदीन के हमरा हफ्ते के रोज़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीरों को दूर से न लाया। इन्होंने कहा कि माजी की हुकूमत ने हमें इस वक्त नज़रअंदाज किया था जब हमारी फसलें शदीद बारिशों की वजह से ज़ेर-ए-आब आ गई, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद 1 महीने के अंदर वो किसानों के खेतों का सर्वे करते हुए खातों में रकम जमा कराई गई। कांग्रेस पार्टी मंडल सदर फैज़ुल्ला खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो भी वादा करेगी वो पूरा करेगी। ఖొగ్దూర్ గ్రామంలో ముఖ్యంగా ఖొగ్దూర్ గ్రామ రైతుల తరఫున ఏదైతే గత వర్షకాలంలో అధిక వర్షాలు కురవడం వల్ల పెన్గంగా నదికి వరదలు రావడం వల్ల ఈ పెన్గంగా బ్యాక్ వాటర్ వల్ల ఏవైతే పొలాలు నష్టపోయినాయో
ఆ నష్టపోయిన పొలాలకు, పంట నష్టం జరిగినటువంటి పొలాలకు సర్వే చేయించి అతి తక్కువ సమయంలో ఎకరానికి 10,000 నష్టపరిహారం ఇచ్చిన దానికి ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి చిత్రపటానికి, మరి అదే మాదిరిగా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్క, అదే మాదిరిగా మా ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి చిత్రపటాలకు ఈరోజు ఖొగ్దూర్ గ్రామ ప్రజల తరఫున పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. అదే మాదిరిగా ఇంకా ఈ ఎస్డిఎఫ్ నిధుల నుండి 2-3 లక్షల రూపాయలు మురుం రోడ్ శాంక్షన్ చేసిన దానికి కూడా ఈ చిత్రపటాలకు పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. మరి మనం చూస్తూ ఉన్నాం, గత 9 ఏళ్ల పాలనలో ఈ పెనుగంగ ఏదైతే బెల్ట్ ఏరియా ఉంది, సాంగ్లీ నుండి మొత్తం ఇక్కడ మాంగుడు వరకు ప్రతి సంవత్సరం ముంపు గురవుతూ ఉండే, ప్రతి సంవత్సరం రైతులు నష్టపోయినరు. కానీ 9 సంవత్సరాలలో కనీసం ఎవరు ఇక్కడ సర్వే చేయించి ఇక్కడ ₹1 ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు. అందుకని రైతులకు ఈరోజు మనం ఆదుకునే విధంగా ఈరోజు అనేక చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैम्प से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు. నీ మంచి మనసుకు వందనం, నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం, ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం, పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం, జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. कांग्रेस पार्टी बौद्ध असम्बली इंचार्ज अडे गजेंद्र ने कहा कि रियासती हुकूमत सरकारी तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलियात फराहम करते हुए सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने का काम कर रही है। इन्होंने हफ्ते के रोज़ KGBV और ज़िला परिषद गर्ल्स स्कूल के खुसूसी तरक्याती फ़ंड से 5 लाख रुपये मालियती स्कूल की हिफाजती दीवार की तामीर के लिए बौद्ध एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के चेयरमैन गंगा रेड्डी की हमरा संग बुनियाद रखा। इन्होंने कहा कि माजी में BRS पार्टी बरसर-ए-इक़्तिदार थी तो सरकारी तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल थे। इन्होंने कहा कि वह जल्द ही चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करते हुए बौद्ध हलक़े में एक मरबूत गुरुकुल स्कूल क़ायम करने की दरख्वास्त करेंगे। इन्होंने ठेकेदार को मॉडल स्कूल में होने वाले तरक्याती कामों को मियारी और जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी।
IFTU के रियासती सेक्रेटरी राजन्ना ने कहा कि इस माह की 20 तारीख को हैदराबाद के सुंदरैया विज्ञान केंद्र में IFTU और ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया का इंज़माम इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले में हफ्ते के रोज़ निर्मल ज़िला मुस्तक़र के सोफ़ी नगर में इजलास के पोस्टर्स की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 1978 में IFTU का क़याम अमल में लाया और इसके बाद से आज तक हम मज़दूरों के हुकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया 14 रियासतों में मुनज़्ज़म है और गैर मुनज़्ज़म शोबों में काम कर रही है। इन्होंने कारकुनों से कसीर तादाद में शिरकत करते हुए जलसे को कामयाब बनाने की अपील की। 8 నుంచి ప్రారంభమై నేటి వరకు అనేక పోరాటాలు ఇవాళ రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూ కార్మిక చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా కార్మిక చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి కార్మిక సంఘాలతో ఐక్యమై పనిచేసి ఇవాళ కార్మిక లోకాన్ని హక్కుల పరిరక్షణకై బీడీ పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్నటువంటి కనీస వేతనాలకై బీడీ కార్మికుల పెన్షన్లకై విరామం లేకుండా పోరాటం చేసినటువంటి IFTU ఎంతో ఘనమైన చరిత్ర ఉంది. ఈ IFTU ఇవాళ చీలికలు పేలికలతోటి 4 వర్గాలుగా ఉంటే కార్మిక వర్గానికి నష్టం జరిగే పరిస్థితి ఉందని భావించి ఒక లక్ష్యం కోసం, ఒక రాజకీయ ఆలోచన కోసం, ఒక విధానం కోసం, ఈ దేశ మార్పు కోసం, కార్మికుల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం, కార్మిక చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న కార్మిక సంఘాలతో సభ జరుగుతూ ఉంది. ఈ సభకు కార్మికులందరూ హాజరై విజయవంతం చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कैंसर और फालिस से मुतासरीन को पहली एक्टिव केयर यूनिट की खिदमत से फ़ायदा उठाना चाहिए। रिम्स हॉस्पिटल में मुतासरीन को बेहतरीन तिब्बी खिदमत फराहम की जा रही है। अहमदाबाद रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ का बयान। हुजूर अक़दस की शान में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ गुड़ी हथनूर मंडल मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम मंडल मुस्तखर में कामयाब और पुरअमन बंद। कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की कोशिशों से मुख्तलिफ कामों के लिए फंड्स की मंजूरी से हल्के में खुशी का माहौल। इस सिलसिले में साबिक वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी से खुसूसी बातचीत। श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।